Sir, you can start of the compare question 15th, the root 24 and 3 root 35. Can you do it again? Because I was again and again getting disconnected. Okay. So, see, I had recorded and put that video on YouTube. So that is already there. You can watch it. Okay. I'll do a different one today. What about that? Let me do this one. Na? This is really tricky, I feel. उससे भी tricky लग रहा है ये मुझे. Can I do this one, Ananya? Yes, sir, you can. Yeah. So क्या तेरे को एक नया variety मिल जाएगा. Plus that you can view in the recorded lecture. The previous one which you missed. And this one will be a new one for you. So एक नया experience है. ठीक है. So this is 2 times fourth root of 6 and 3 times fourth root of 2. ठीक है. अब ये फोर्थ रूट है. जैसे ही मैंने बाहर वाले नंबर को अंदर फोर्थ रूट में डाला तो वो हो जाएगा 2 रेज टू 4 और यहां पे हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 2 टाइम्स 3 रेज टू 4. अब मुझे इसको सॉल्व करना है. सो दिस विल बी फोर्थ रूट ऑफ 6 टाइम्स 2 रेज टू 4. तो 6 टाइम्स 2 रेज टू 4 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? So we have to note it down, right? सॉरी. We have to note it down. Yeah, if you note it down, it will be good for you. Can you tell? अच्छा चलो ये तो मैंने कर दिया. Can you tell me 3 raised to 4 कितना होता है? 3 into 3 into 3 into 3. 81. Sir. Very good. Okay, last step, fourth root of 16 सिक्सा कितना होता है? 96. बाकी लोग भी आंसर करो प्लीज. सिर्फ क्रिश बेचारा कर रहा है. 81 टूजा कितना होता है? 162. वेरी गुड. तो यहां पे अब आया फोर्थ रूट ऑफ 96 और फोर्थ रूट ऑफ 162. कौन सा नंबर बड़ा है? फोर्थ रूट ऑफ 162. तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये बड़ा. दिस इज हाउ यू डू इट. दिस इज हाउ यू डू इट. समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. एंड डिड यू नोट इट? Yes, sir. Yes, sir. Sir, I'm noting it. Just a second. Yes, sir. I am also. ओके ओके ओके. नोट इट डाउन आराम से. When you're done, tell me you're done so I can go ahead. Sir, I'm done. Done, Om? Sir, done. Yes, sir. Great. Okay, next I want to try the question number 16. And this is really, really, really interesting, easy, fun, and very nice method. 16th question. Insert two irrational numbers between 5 and 6. कौन से नंबर डालने अपने को? Irrational. रैशनल वाला तो हमने सीखा था फर्स्ट एक्सरसाइज में. इफ यू रिमेंबर हम लोग क्या करते थे? दो रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को इक्वेट करके फिर इंटू 10/10 करके फिर नंबर गैप बढ़ा के हम लोग डालते थे. यू रिमेंबर दैट? Yes, sir. Yes, sir. But here the things are going to be different because we have to put irrational numbers between two rationals. ठीक है. तो नंबर क्या है? 5 and 6. The numbers are 5 and 6. अच्छा, so I want you guys to note this method very very nicely. ठीक है. 5 को मैं लिखूंगा √25 और 6 को मैं लिखूंगा √36. √25 5 ही होता है ना? Yes, sir. एंड Yes, √36 sir. 6 होता है. ठीक है. अब √25 और √36 के बीच में मुझे इर्रेशनल नंबर ढूंढना है. इट्स वेरी इजी. मुझे कितने ढूंढने? 2 Yes, sir. इर्रेशनल. तो एक इर्रेशनल होगा
रूट 26, दूसरा 26, होगा रूट 27, 27, 27, और भी चाहिए तो और भी है, रूट 28 है, रूट 28, 29 है, रूट 30 है, रूट 31 है, कितने चाहिए? बहुत सारे मिल जाएंगे. So these are all irrational numbers which are between root 25 and root 36. How did you like the method? Easy है ना? Very yes Indian. sir, It's very Very easy. easy, very easy. ठीक है. अच्छा, अभी मैं करूंगा 18th वाला and this is also very easy. So 18th वाला question है, write two rational numbers between root 2 and root 3. Remember यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोग? Write two rational numbers between root 2 and root 3. Rational. Sir, Yes. so can we here find the decimal of Yes, these two? yes, of course. See, यहाँ पे लोग ने किया ही है, मैं तुम्हें वही बताने वाला था, Because वही decimal will मेथड. be rational only. I will tell you how. ठीक है. See, first you will write root 2 as root of 2.00 and root 3 as root of 3.00. Now, अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा है, listen to me, अगर तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, so you should be able to tell me 200 और 300 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन से आते हैं? 200 और 300 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन से आते हैं? रिमेंबर व्हाट आई एम आस्किंग. 200 और 300 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन से आते हैं? सो सी, 12 स्क्वायर 144 होता है, 200 से छोटा है. 13 स्क्वायर 165, 14 स्क्वायर 196, अब ये 200 से करीब आ गया है. 15 स्क्वायर कितना होता है? 225. 16 स्क्वायर कितना होता है? 256. 256. 17 स्क्वायर कितना होता है? 289. 18 स्क्वायर कितना होता है? 324. ये नहीं लेंगे हम लोग. तो मुझे ऐसे 3 नंबर मिले which are between 200 and 300 and which are perfect squares. अब मैं क्या करूंगा? मैं इन नंबर्स को पॉइंट में लिखूंगा. सो आई कैन से दैट 0.200 के बाद, रूट ऑफ 0.200 के बाद मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ 2.25. फिर रूट ऑफ 2.56, फिर रूट ऑफ 2.89. You see? These all numbers are lesser than 3.00 but greater than 2.00. But if you find their root, तुम्हें क्या मिलेगा? You will be surprised. 225 का रूट कितना होता है? 15. तो 2.25 का रूट कितना होगा? 1.5. 256 का रूट कितना होता है? 16. तो 2.56 का रूट कितना होगा? 1.6. एंड 289 का रूट होता है 17. तो 2.89 का रूट कितना होगा? 1.7. सो रूट 2 और रूट 3 के बीच में कौन से नंबर आते हैं? 1.5, 1.6, 1.7. एंड आई हैव अनदर मेथड फॉर यू. अनदर मेथड आई एम गोइंग टू गिव यू. सी, रूट 2 का वैल्यू हमने ढूंढा था, याद है, लॉन्ग डिविजन से. Yes, sir. It was 1.41. 1.414 अप्रोक्सीमेटली. इसके आगे चलता जाता था. एंड रूट 3 का वैल्यू कितना था पता है? 1.732 approximately. So you just have to give me rational numbers between these two non-terminating, non-recurring decimal expansion. So 1.414 से बड़ा rational number कौन सा है? 1.5, 1.6. 1.732 से छोटा कौन सा है? 1.7. देखो सेम आंसर आया. और भी नंबर मैं बता सकता हूं. 1.42, 1.45, 1.52, 1.63, 1.71. These are all rationals between root 2 and root 3 because their decimal expansion is terminating and non-recurring. Terminating it is basically. इसलिए rational number है. समझ में आया क्या टेक्निक? Yes. Did all of you understand? Please tell me yes Yes, or no. प्राजक्ता का नहीं सुनाई दिया मुझे, अनन्या का नहीं सुनाई दिया मुझे. So Prajakta. yes sir,
Prajakta, are you there? Yes, sir. Prajakta, what happened to her? Acha, Sir, she might be there. What she is typing? sir, it was Mahant. Oh, Mahant is back. Okay, Prajakta is not there. Okay, great. Mahant can also hear. Very nice. चलो सब लोग है. प्राजक्ता नहीं है. She will watch the recording. Great. Moving on to the next question. See, next question 19. मैं होमवर्क दे रहा हूँ. तो मैंने कौन से करने कर पता है तुम्हें क्वेश्चन सारे ही करना है. You have to do all of them again. मैं कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व, बट यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस अगेन. इफ यू डू इट अगेन, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा और ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रांग हो जाएगा. ठीक है? यू गाइस कैन डू दैट, राइट? Yes, sir. Okay, just a moment. Okay, question number 20 पे जाते हैं. And this is going to be really interesting because अब irrational numbers के ऊपर जो simplification होता है उसमें तो हम चैंपियन बन चुके हैं. चलो, सिंप्लीफाई बोला है, सिंप्लीफाई. और फर्स्ट क्वेश्चन है 5th रूट ऑफ 16 टाइम्स 5th रूट ऑफ 2. 5th रूट ऑफ 16 टाइम्स 5th रूट ऑफ 2. अच्छा, कैसे, क्या इसको मैं लिख सकता हूं 16 रेज टू 1/5? मैंने बताया था ये रूल, याद है तुम्हें? लास्ट क्लास में, मतलब यस्टरडे, कल बताया था मैंने ये रूल कि अगर तुम्हारा रूट में कोई नंबर है ना, उसको रेज टू 1 अपॉन द सेम नंबर लिख सकते हो. तो इसको मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं? कैन यू टेल मी? 2 रेज टू 1/5. वेरी 1/5. गुड, 1/5. अब देखो और एक चीज, ये 16 है ना, उसको मैं लिखूंगा 2 रेज टू 4 द होल अपॉन 1/5. और इसको भी मैं लिखूंगा 2 रेज टू 1/5. अब ये जो 4 है ना, 4, ये कहां पे जाएगा पता है? ये सीधा उड़ के जाएगा इसके न्यूमरेटर में. सो ये हो जाएगा 2 रेज टू 4/5. दीज आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. और टाइम्स ये हो जाएगा 2 रेज टू 1/5. आई एम सॉरी, ये ब्रैकेट मुझे सिर्फ 2 पे डालना था. Sir, but there is one more easier method than this. Okay, there may be, but just see this method, then we'll explore the other method. No problem. Okay, there is one more easier method, you are right, and we'll do that also after this. See, now if you see the bases are same, दोनों का base same है, and there is a multiplication sign. So there is a rule which says a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. मतलब अगर बेसिस सेम है और पावर अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो यू कैन ऐड द पावर्स. सो दिस विल बिकम 2 रेज टू 4/5 प्लस 1/5. दैट इज 2 रेज टू 5/5. दैट इज 2 रेज टू 1 विच इज 2. तो आंसर तुम्हारा आया 2. नाउ कमिंग टू द अदर मेथड विच यू आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज ऑल्सो ईजी मेथड, easier than this, you are right. ठीक है? Suppose I have, see I'm giving you a rule. Rule क्या है पता है? Root of a times root of b अगर है तो you can write it as root of ab. Please note the rule. मैंने पहले भी बोला था ये root of a upon root of b अगर है तो you can write root of a by b. ये rule है. Please इसको note करो फटाफट. Note down this rule please. ठीक है? अब देखो एप्लीकेशन, देखो इसका. मेरे पास क्या है? 5th रूट ऑफ 16 टाइम्स 5th रूट ऑफ 2. तो ये दोनों में जो रूट है ना, दैट इज कॉमन. 5th रूट, दोनों के पास 5th रूट है. तो इसका मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? 5th रूट ऑफ 16 टाइम्स 2 भी लिख सकते हैं इसको. ठीक है? अच्छा, इसको अभी ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं. 5th रूट ऑफ 16 टाइम्स 2, मैं इसको लिखूंगा 5th रूट ऑफ 2 रेज टू 4 टाइम्स 2 रेज टू 1, क्योंकि 16 इज नथिंग बट 2 रेज टू 4.
ओके अभी इसको कैसे लिखूंगा? फिफ्थ रूट ऑफ 2 रेज टू 4 प्लस 1, दैट इज फिफ्थ रूट ऑफ 2 रेज टू 5। ठीक है, अब ये फिफ्थ रूट और ये 5 कट जाएगा और आंसर आएगा 2। फिफ्थ रूट और 5 कट जाएगा, आंसर आएगा 2। दैट इज हाउ यू डू इट। Sir, we can just write 16 to 2 as 32 and also 32 या is 32 इज नथिंग बट 2 रेज टू 5, yes, sir. फिर से वो कट जाएगा। तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, यू कैन डू दिस ऑल्सो, यू कैन डू द प्रीवियस मेथड ऑल्सो। मतलब तुम्हें जो इजी लगता है यू कैन ट्राई दैट। मैं थोड़ा इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ, सो दोज हु वांट टू कॉपी कैन डू दैट। या one more zoom out. Yeah, now you can see the whole thing on my screen रूल के साथ। किसी को कोई डाउट है ये फर्स्ट वाले सिंप्लीफिकेशन में? No, sir, no doubt. ओके कभी किसी को लगता है कि नहीं समझ में आया, डाउट है, फिर से करो, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, बिंदास पूछने का। एंड ये सेम चीज तुम्हें वापस रिपीट करना पड़ेगा होमवर्क में, सो दैट इट गेट्स स्ट्रेंथन। इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है तुमको। ठीक है, चलो लेट्स, आई थिंक वी आर रेडी टू गो विद द नेक्स्ट टॉपिक। Okay, next question is next sub question simplify में, वो वाला मैं नहीं कर रहा हूँ because that is again based on the same property जो अभी हमने पढ़ी थी। ठीक है, so I'm going to go on question number 3, sub question 3 of question number 20। 3 plus root 2 bracket 4 plus root 7। अनन्या, अनन्या, ओम, what happened? Yes, sir. Yeah, Om, can you please help me how to simplify this? Yes, sir. कैसे करेंगे इसको? मैं एक स्टेप करके दिखाता हूँ। देखो ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, सो 3 Yes, sir. ब्रैकेट 4 प्लस रूट 7, 3 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर रूट 2 ब्रैकेट 4 प्लस रूट 7। ठीक है, नाउ कैन यू सॉल्व इट? दिस इज लाइक मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल्स जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था। Yes, sir. यस। So we'll multiply 3 into 4 बोलो ना। plus 3 into root 7, एक मिनट, 3 4 जा कितना होता है बोलो ना। 12. हाँ, प्लस क्या लिखूं? 3 into root 7, 3 इंटू रूट 7 कितना होता है? ओम, sir. 3 रूट 7। 3 root 7. 3 इंटू रूट 7 इज 3 रूट 7। ठीक है, Yes, sir. प्लस रूट 2 इंटू 4, 4 root 2. वेरी गुड, प्लस रूट 2 इंटू रूट 7। दिस गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। इसमें मल्टीप्लीकेशन कितना याद है वो समझ में आ जाएगा। रूट 2 इंटू रूट 7, कम ऑन। Sir, root 14. वेरी गुड, यू रिमेम्बर रूट 14। अभी इसमें कोई लाइक टर्म्स है तो ऐड कर सकते हैं। किसी को किसी के साथ ऐड कर सकते हैं क्या? कोई लाइक टर्म्स दिख रही है? No, sir. नहीं, तो योर आंसर विल बी लेफ्ट लाइक दिस ओनली। किसी को किसी के साथ Yes, ऐड नहीं कर सकते। देयर आर नो लाइक Yes. टर्म्स, सो यू कैन नॉट सिंप्लीफाई।
ठीक है? Yes, sir. Okay. Next, Prajakta, are you back? Mahant, are you there? Mahant, are you there? Krish, can you hear me? Yes, sir. Krish, can you please help me expand this? Okay, sir. Sir, this will become root 3 square. Can you tell me which identity we will use? A plus B. A minus B. Oh, sorry. Yes. A Can minus you, B. And it will become A square plus B square minus 2AB. yes. So can you tell me what is root 3 minus root 2 the whole square? Sir, it will become root 3 square Okay. plus root 2 square Okay. minus 2 into root 3 into root 2. Okay. So, sir, now if we simplify, it will become 3 plus 2 Okay. minus 2 root 6. Perfect. So, the Ahead. final answer will be 5 minus 2 root 6. Perfect. ठीक है, समझ में आया simplification? Yes, sir. Okay, great. So that was Yes, sir. the final question from this part. Great. Now, see, you have already completed up to question number 4. 5 to 15 I gave homework till yesterday, and today I'm giving homework from 16 to 20. So that means this part is completed, over, right? Yes, sir. Okay, wait.